محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. پڑھیں پڑھیں. آمین. ان ہستیوں سے دوستی کریں اور دوستی دو چیزوں سے ہوگی. لکھ لیں. ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ان کی صبح کو اپنی صبح بنائیں. ان کی شام کو اپنی شام بنائیں. ان کے رواج کو اپنا رواج بنائیں. ان کے فیشن کو اپنا فیشن بنائیں. ان کی تہذیب کو اپنی تہذیب بنائیں. ان کی شادیوں کو اپنی شادیاں. ان کی غمیوں کو اپنی غمیاں. ان کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں. پھر آپ حسینی ہیں. حسینی ہیں. اور اگر مزاج کی زندگی گزاری, طبیعتوں کی زندگی گزاری, رواج کی زندگی گزاری, چاہت کی زندگی کی گزاری, پھر قیامت کے دن کیا ہم حسین کی گروہ میں کھڑے ہوں گے یا یزید کے؟ سوچیں. یہ سوچ میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے. یہ جذبہ میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے. سوچیں کیا گھٹن ہوگی, کیا بچوں کی چیخیں ہوں گی, کیا نیک بیبیوں کی آہیں ہوں گی, کیا غم, کیا قصہ ہوگا, کیا درد کا منظر ہوگا. تھوڑی سی میں نے ہوا بند کی ہے. خود بھی گرمی میں بیٹھا ہوں, آپ کو گرمی میں بٹھایا ہے. اور میں گرمی میں زیادہ بیٹھا ہوں, اونچا بیٹھا ہوں. گرم ہوا ہمیشہ اوپر اٹھتی ہے, ٹھنڈی ہوا نیچے آتی ہے. سوچیں. اور اگر آپ نے ان سے دوستی کر لی, حضور کے گھرانے سے دوستی کر لی, اللہ اکبر, زندگی میں آپ کے لیے ایسے شیشے کھل جائیں گے, آئینے کھل جائیں گے. چلا دے پنکھے, چلا دے ایگزاسٹ. اب دیکھنا تازہ ہوا آتی ہے. آئیے. ان ہستیوں کی زندگی کیا تھی, اس کو سوچیں. میں آپ سنجیدہ مضمون آپ سے بیان کر رہا ہوں. آپ سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں, غیر سنجیدہ نہیں بیٹھے. آپ عاشق دیوانے بیٹھے ہیں. آپ نے آج کی صبح کی محفل میں ایک لفظ سنا, صبح کی مجلس میں ایک لفظ سنا کہ سارے واقعہ کربلا کا نچوڑ, سارے واقعہ, بھائی سپیکر خراب ہے, بہت پریشان ہو رہا ہوں میں. سارے واقعہ کربلا کا نچوڑ, سارے واقعہ کربلا کا نچوڑ صرف ایک چیز ہے. مردوں نے حق اور صبر کو نہ چھاڑو, عورتوں نے حیا اور پردے کو نہ چھوڑا. مردوں نے حق اور صبر کو نہ چھوڑا, عورتوں نے حیا اور پردے کو نہ چھوڑا. سارے واقعہ کربلا کا نچوڑ. آج میں نے جو پہلی محفل تھی صبح کی, ابھی دوسری محفل ہے, اور اب فیصلہ کریں زندگی حسینی گزارنی ہے یا یزیدی جذبے کے ساتھ گزارنی ہے. حسینی زندگی کیا ہے, فکر حسین کیا ہے, حسین کے جذبے کیا ہیں, حسین کا درد کیا ہے, حسین کا غم کیا ہے. کیا وہاں زمین کے لیے گئے تھے, مال و دولت گئے تھے, سونا بٹ رہا تھا اس کو چھینا جھپٹی کرنے گئے تھے, کوئی ڈالروں کی بارش تھی؟ نہیں نہیں, اپنے دین نانے کا سچا پیغام لے کر گئے تھے. اور سچے پیغام کے لیے اگر موت آ گئی, زندگی آ گئی, شہادت مل گئی, جبکہ ان کو موت نہیں ہے, شہادت مل گئی, اور اپنا گھرانہ بھی شہید کرا دیا,
تو وہ जज्बे कबूल हैं और अल्लाह की नाफरमानी का जज्बा कबूल नहीं है। आज के बाद जो पढ़ते हैं ना, उन हस्तियों को हदिया करना शुरू कर दें। उन हस्तियों को हदिया करें, मेरे हुजूर के घराने को हदिया करें, हदिया करें। आप चाहते हैं कि आपकी इन हस्तियों से बातें हों, इन हस्तियों के साथ राज़ो नियाज हो। बल्कि एक अल्लाह वाले थे, वो हुजूर के घराने को बहुत हदिया करते थे। मुझे अचानक याद आया, आखिरी वक्त में बाकायदा हस्तियों के नाम ले ले के कहने लगे, ये आए हैं मुझे कलमा पढ़ा रहे हैं, ये आए हैं मुझे तलकीन कर रहे हैं, ये आए हैं मुझे तसल्लियां दे रहे हैं, ये हस्ती आई हैं। इश्क वाले तो मान गए, अकल वाले कहने लगे आखिरी वक्त में इनका दिमाग फिर गया है, आखिरी सकरात मौत की सख्ती की वजह से, मौत की सख्ती की वजह से इनको जो है बस ऐसे ही है। और उनमें से जो सबसे ज्यादा शक करने वाला था, उसको ख्वाब में वो हस्तियां आई और डांटा, कहा तो उस पे शक करता था, हम हकीकी आए थे और हमने आके उसको कलमा और अमाल और तसल्लियां दी थी। क्यों? कि वो हमें हदिया देता था, हमें हदिया देता था। इन हस्तियों को हदिया दें, इनके एहसानात हैं, इन हस्तियों को हदिया दें। अगर मैं दलील दे रहा हूं, अगर ये हस्तियां इतनी छोटी होती, हुजूर का घराना आले मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, आले मोहम्मद इतना छोटा घराना होता तो ये नमाज का हिस्सा ना होता, अत्तहियात का हिस्सा ना होता, फिर दरूद इब्राहिमी के अल्लाह लफ्ज और बदल देता। अल्लाह कहता दरूद इब्राहिमी के और लफ्ज बदलो, उसमें से आले मोहम्मद को निकालो। अगर ये हस्तियां इतनी छोटी होती, सच बताऊं ये हस्तियां बहुत बड़ी हैं, ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं। इनसे दोस्ती करें, इनसे ताल्लुक बनाएं, इनके साथ मोहब्बत करें। मैंने ये किया, बड़ी पुरानी बात है। जो पढ़ता था तस्बीहात जिक्र करता था, उस वक्त मेरे ऊपर सूरत फातिहा का गलबा था। मैं सूरत फातिहा बहुत पढ़ता था। सलात और तस्बीह अल्लाह तौफीक देता था, पढ़ता था, रोजे रखता था, हर सोमवार के, हर जुमेरात का। और अय्याम बीज में जो मैं अमल बताता हूँ, सारी रात सूरत फातिहा पढ़ना ये अमल करता था, अय्याम बीज का अमल करता था। और जो भी हदिया होता था हुजूर के घराने को पहुंचाता था, जो भी हदिया था मैं हुजूर के घराने को देता था। यह अमल चलता रहा। कोई साल 1.5 साल चला होगा, अंदाजा कह रहा हूं, साल से ऊपर था। चलता रहा। एक रात मैंने ख्वाब देखा। मैं अपने ख्वाब नहीं बताता, होते हैं तो नहीं बताता, वैसे अमूमन नहीं होते। अपनी कश्फ करामात, कभी कभार कोई ख्वाब देखा। एक मस्जिद है, उस मस्जिद में बहुत से लोग जमा हैं। बहुत कदीम मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है। मैंने इसमें समरकंद में गालिबन एक जगह देखा था, तो अचानक ख्याल आया ये वही मस्जिद है, समरकंद बुखारा जिसे कहते हैं। तो एक मस्जिद में मैंने देखा बहुत लोग हैं और इंतज़ार हो रहा है कि मिंबर खाली है, एक हस्ती आने वाली है। और पता चला कि हजरत अली तशरीफ ला रहे। तो मैंने देखा कि एक बूढ़े बुजुर्ग हैं, बहुत बूढ़े हैं, और उनका चेहरा नूर, और दाएं बाएं 2 जवान हैं खूबसूरत, उनके कंधों पे हाथ है। तो मुझे एक बंदा कहने लगा, पता ये कौन है? ये दाएं वाले हसन है, ये हुसैन है। अच्छा, वो आए, मिंबर पे बैठ गए, बेटे सर झुका के बैठे। अब उनका बयान शुरू हुआ, वो मुझे महसूस नहीं हो रहा। लोग सर झुका के बैठे, आंसू बहा रहे हैं।
थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे आगे बोला, इधर आओ, इधर बैठ जाओ। और मैं जब बैठा तो वो महसूस हुआ ये हुसैन है। खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू। मेरे दिल में एहसास हुआ कि इन्होंने खुशबू कहाँ से ली है। मैं बाज़ौर हूँ, मैं भी ये खुशबू लूँगा। मुझे ऐसे देख के इशारा किया, ये यहाँ से आ रहे, सीने से आ रहे, दिल से आ रही। तो मैंने अर्ज किया, मैं डर रहा हूँ इस वक्त बात करते हुए। खुद सताई की कैफियत है, नुमाइश की कैफियत है कि ये आप अपने आप को क्या बनाना चाहता है। लोगों के भांडे और बर्तन छोटे हैं, छोटे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मेरे साथ होते हैं, मैं मंसूब कर देता हूँ कि एक बंदा था, उसके साथ ये हुआ। तो मैंने खुशबू तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ऐसे देख के फरमाया, ये यहाँ से आ रही है, दिल से आ रही है। मेरे जी में आया कि मुझे अगर दिल से लगा दें, यही खुशबू मेरे दिल में मुंतकिल हो जाए। अब वो मेरे ख्यालात बैठे पढ़ रहे थे और मैं सोचों में, यानी हज़रत अली का खिताब चल रहा था, लोग बैठे थे, बड़े नूरानी चेहरे थे, मजमा था बहुत ज़्यादा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के सर पे पगड़ी मुबारक थी, दाढ़ी बड़ी लंबी थी और चेहरे पे सारा वो नक्शा सामने है, वो सारा नक्शा सामने है। अल्लाह, वो सारा नक्शा सामने है। तो मेरा ख्याल पड़ रहे थे, तो मेरे जी में आया कि मैं इनके सीने लग जाऊं, मुझे सीने लगा ले, ये नूर मेरे अंदर भी मुंतकिल हो जाए। तो मुझसे फरमाने लगे, एक शर्त पे। मैंने कहा जितना अरसा पढ़ा है सारा मुझे हदिया कर दो। मैं तो करता था। कहा अच्छा ठीक है, 313 बार सूरत यासीन हदिया करो मुझे। मैं ठीक है, फिर मैं खुद सीने से लगाऊंगा। उसके बाद और बातें भी हुई। इस वक्त मैं हदिये की बात कर रहा हूँ। और भी कुछ इनायत फरमाया, अता फरमाया, शफकत फरमाया। मैं एक तरफ बैठ गया कोने में। मैंने 313 बार सूरत यासीन ख़त्म कर ली। ऐसे महसूस हुआ मैंने पढ़ ली, ख़त्म कर ली। मैं पढ़ रहा हूँ, इतनी हो गई और मैंने ख़त्म कर ली, पढ़ ली। मैं आ गया, हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे हदिया करो। मैं जी आपको तो ज़रूरत नहीं है, आप तो अल्लाह की ख़ास रहमत वाले हैं। कहा हदिया किसको अच्छा नहीं लगता। अल्फाज मुझे याद है, मुझे हदिया करो। मैंने हदिया कर दिया। अब ऐसे महसूस हो रहा है कि बाबा को देख रहे हैं। बाबा कहेंगे मेरा खिताब, मेरा बयान चल रहा है, तो बंदों को पकड़ के गले लगा रहा है। ऐसे देखा ना, जैसे नज़र बचा के गुस्साखी ना हो जाए। मुझे ऐसे पकड़ा और अपने सीने से लगाया। अल्लाह मेरे जज्बे सच्चे कर दे। मैं आज बयान कर रहा हूँ, मैं बयान नहीं करता। मैं छोटा आदमी हूँ। अगर कोई बंदा मेरी वजह से बदगुमानी में मुब्तला हो गया, वो गुनाहगार हो जाएगा, फिर मैं जरिया बन जाऊंगा। बर्तन छोटे, भांडे छोटे, ज़र्फ छोटे। यहाँ एक दरवेश थे हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपना कश्फ बयान करते थे। उन पे अपने भी एतराज़ करते थे, उन पे पराए भी एतराज़ करते थे, बहुत एतराज़ करते थे, अपने भी और पराए भी। सीने से लगाया बहुत देर तक, डूब गया कायनात की वसअतों में। क्या महसूस किया मैंने, वो कौन से मुंह में से बयान करूं। मेरे लफ्ज लड़खड़ा रहे हैं, कौन से मुंह से बयान करूं।
कैफियत ऐसी हैं, मुझसे बोला नहीं जा रहा। और उसके बाद फिर क्या मिला, बस किस्सा खत्म। आगे जुर्रत नहीं हो रही, दिल और जिस्म साथ नहीं दे रहा। फिर मैंने ख्वाब से बेदार होने के बाद उसको आंखों से महसूस किया, यहाँ से पकड़ा था, हाँ खुशबू खुशबू, कई दिनों तक खुशबू। मैंने वो सूट जो पहना हुआ था रात का, वही फिर मैंने उसको संभाल के रखा। वो एक अरसे के बाद एक बंदा आया, वो ले गया, मुझे दे दें, आपको उस हस्ती का वास्ता है जिस हस्ती ने आपको सीने से लगाया था। मेरा दिल फट गया, मैंने कहा ले जाओ, जबकि मेरे जी में था मैं इसे कफन में अपने साथ रखूंगा। मैं ग़ज़वा मूता में गया, वो यहाँ यरमूक में है, आले रसूल असहाब रसूल शहीद हुए वहाँ। मैंने वहाँ से मिट्टी उठाई और अपनी औलाद को कहा, आले रसूल का इसमें खून था, ये मिट्टी मेरी कब्र में मेरे साथ कफन में रख दे। मेरे पास बख्शिश का कोई सामान नहीं, आज भी मिट्टी महफूज रखी है मैंने। मेरे पास कोई बख्शिश का सामान, कोई हस्ब नस्ब, कोई तकवा, कोई कुछ नहीं। ये मिट्टी, उन ग़ज़वात में बड़ी बड़ी हस्तियां, हजरत अली के बड़े भाई हजरत जाफर भी थे, और हजरत अली अपने बड़े भाई की बात नहीं टालते थे। मैं उनके मज़ार पे गया और उनसे जाके अर्ज किया, ऐसे ऐसे मैंने एक अमल किया है, मेरे पास मिट्टी है शहादा के खून की, इस मिट्टी को मैं अपने साथ कब्र में रखूं। बड़ा अजीब ख्वाब था वो, बहुत लंबा ख्वाब था जिसका लफ्ज़ लफ्ज़ मुझे याद है। कुछ कुमरियों को याद, कुछ बुलबुलों को हिफ्स, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तां के। उनको हदिया दें 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 दें, देते जाएं भूलते जाएं, देते जाएं भूलते जाएं। न महीने का इंतज़ार करें, न साल का इंतज़ार करें, न 2 साल का इंतज़ार करें। मैंने आपको अपना एक वाक़या सुनाया था कि एक अमल है, अगर अपने किसी अजीज़ महबूब प्यारे को, किसी मैयत, किसी मरहूम को आप ख्वाब में देखना चाहते हैं, मैंने ये अमल कई दफ़ा बताया। हमारे बड़ों ने किताबों में लिखा है कि 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ें, ये 4 रकात के बाद सलाम फेरें, इकट्ठी 4 रकात, और फिर एक तस्बीह दरूद पाक पढ़ते 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 सो जाएं। उस हस्ती की या अपने कोई माँ बाप अजीज़ प्यारी की मुलाकात होती है। मैं साल साल से बता रहा हूँ, और बेशुमार लोगों ने कहा। मैंने पढ़ना शुरू की, मुझे इसका नहीं मिला। मैंने सबसे पहले जिस हस्ती का तस्करा किया कि किसी तरह ये हस्ती मुझे मुलाकात हो जाए, नहीं हुई। तकरीबन 17-18 साल में पढ़ता रहा, कोई मानेगा। मुझ पे अमल नहीं खोला, जिसको बताता था उस पे खुल जाता था, मुझ पे नहीं खोला। मैंने कहा तारिक, तेरे पढ़ने में कमी, तेरे पाने में कमी, तेरी तलाश में कमी, तेरी खोज में कमी, तेरी तलब में कमी, तेरी तड़प में तारिक कमी है, अता करने वाले की अता में कमी नहीं। 17-18 साल के बाद जब वो अमल खुला तो पूरे जोबन के पास साथ खुला। अब तो आलम यह है कि उस अमल का सिर्फ इरादा कर लेता हूं, ज़ियारत हो जाती है। हदिया दो, मेरे आका के घराने को हदिया दो, माल का हदिया,
आमाल का हदिया। एक और हदिया दें, इसको भी मैंने आजमाया, एक और हदिया दें, इसको मैंने आजमाया। अब पहले वाकया सुने, फिर आप वाकये की समझ आएगी, फिर हदिये की समझ आएगी। तवज्जो से बैठे हैं, पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद। बुखारी शरीफ में एक रिवायत है, सबूत के साथ एक मुस्तनद रिवायत है। 3 बंदे थे, सफ़र में जा रहे थे, बारिश तूफ़ान, जैसे अभी हमारी बारिश की आमद की खबर हो रही है, ऐसे बारिश तूफ़ान बना हुआ, तो उन्होंने गार में पनाह ली। तूफ़ान आया तो पत्थर गार के आगे आ गया, और इतना आया कि उसमें से बंदा निकल नहीं सकता था। तो उन तीनों ने, एक ने अपनी वालिदैन की खिदमत, क्या मैंने अपनी वालदा की इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की। सच पूछें, जो माँ और बाप का मजाक चिढ़ाते हैं ना, मैं पास का तो गार वाला वाक़या मुझे याद आ जाता और मैं तड़प जाता हूँ। आज भी अपनी अम्मा के कदमों में बैठता हूँ तो डरता हूँ। वालिद साहब के चेहरे का तस्वुर से हैबतनाक हो जाता। तो एक ने अपनी माँ की खिदमत, दूसरे ने मजदूर की मजदूरी देने की खिदमत का जो है उसकी बारगाह में इजहार सवाब पेश किया। एक ने ये कहा था कि मुझ पे गुनाह का वक्त था और गुनाह पे पूरी ताकत और कुदरत थी, अल्लाह महज तेरे करम से मैंने वो ना किया। इन तीनों चीज़ों को मैंने हदिया देने पे बड़ा आजमाया। माँ बाप की खिदमत करके, सह के, माफ़ करके, बर्दाश्त करके, किसी की मजदूरी दे के, या किसी ज़रूरतमंद गरीब को की मदद करके। और कोई ऐसा वाक़या मामला वक्त था जहाँ ख़ता हो सकती थी, उससे अल्लाह की रज़ा, महज अल्लाह की रज़ा से बच के ये हदिया हुजूर के घराने को पेश करें। यह हदिया हुजूर के घराने को पेश करें। कोई मौका ऐसा ना चूसे, कोई मौका ऐसा ना चूके कि जिस मौके में हुजूर के घराने को हदिया ना दे। आप सोच नहीं सकते आपकी ज़िंदगी में कैसी हैरत अंगेज बारिशें, बहारें, बारिशें, बहारें, बारिशें, बहारें, बारिशें, बहारें। किस चीज़ की बारिश? रिस्क की, वुसअत की, सेहत की, राहत की, रहमत की, आफियत की, करम की, अता की, शफकत की, मेहरबानी की, उसकी नजर करम की बारिश और बहारें ऐसी आएंगी, ऐसी आएंगी, ऐसी आएंगी। बस ऐसी आएंगी, ऐसी आएंगी कि आप बागों बहार हो जाएंगे, आपकी झोलियां भर जाएंगी, आपकी नाकामियां दूर हो जाएंगी, आपके मसले हल हो जाएंगे, आपको सुकून और जिंदगी का अनोखा चैन आ जाएगा। ये हस्तियां दोस्ती के काबिल हैं। एक और वाक़या सुना। एक बंदा मेरे पास आया कि मैं हमजाद को ताबे करना चाहता हूँ, जिन्नात को ताबे करना चाहता हूँ। सुना है आपके पास अमल है, आपके पास जिन्नात हैं, या तो कुछ जिन्नात मुझे दे दें, वो सारा दिन मेरी ड्यूटी, मेरी खिदमत करें, या ऐसा अमल बताएं जिससे जिन्नात मेरे ताबे हो जाए। मैंने उसे रोका, मैंने कहा तू ये इरादा, ये मिजाज, ये सोच छोड़ दे, तू दोस्ती कर। फिर मैंने कहा दोस्ती की 2 राहें हैं, एक हुजूर के घराने से कर या जिन्नात से कर, चुन ले। तुझे मैंने दोनों के अमल बताता हूँ। सोच सोच के कहने लगा जिन्नात से दोस्ती करूँगा, इस दुनिया में तो होगा, आखिरत में तो फिर खाली होऊंगा।